तो हमारे दिल को कौन हो फोन में वो? बोलो। अरे काई नहीं यार, फोन आते आते टच आवन चालू થઈ ગયું તો એમાં તમને ફોન દે દીધો. હું લેક્ચર મારા અત્યારે એક્ઝામ હાલે છે. એક્ઝામ નું બધું तो के अलावा कोई मैं ये नहीं लगा ये वाला तो कब लेट लेक्चर Hello everyone. गुड मॉर्निंग सर Good morning all of you. I am extremely sorry once again that you all have to wait. यस सर बहुत लेट हो गया लेट इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेट चला गया था. जब भी ऐसा होता है ना कि जब जरूरत हो ना तब इंटरनेट चला ही जाता है. चलेगा सर कंटिन्यू करते हैं ठीक है. हाँ, fine. So let us start with our topic. I guess we have done with if else. Today we will see switch case. Okay. And we will also understand the difference between if else and switch case. What exactly are the two things? How they are different from each other? Wait for a second. I will just share the screen.
करने। Okay, is my screen visible? It is visible. Right. Now it is visible. Okay, so today we are going to deal with switch case. Okay, this one. We have already covered if else. What is the application of it and how it is different from if else? Okay. Now, with the help of if else, we can select one case. नहीं, मैंने लास्ट टाइम का लेक्चर अपलोड नहीं किया. आई विल अपलोड टुडेस एंड लास्ट टाइम लेक्चर बुक टुडे. Okay. Fine. So what is the difference between if else and switch case? First of all, both if else and switch case falls under the category of selection conditional statement. Okay. Okay. Fine. With the help of if else as well as switch case, we select one out of many possible selections. Okay. For example, if we are to check whether the given number is even or odd, so we divide that particular number and we select either it is even or it is odd. Okay. Likewise, if we are to check whether the given number is positive, negative, or zero, okay, in that case we use if else. So based on the condition whether the number is negative, positive, or zero, we print the specific statement and we select the specific path. Okay. So the same way switch case also works, but the difference in if else and switch case is that in case of if else, we are supposed to execute, we check all the conditions and based upon the conditions, we execute a statement. But in case of switch case, we directly jump to the particular case. Okay, I will just solve this particular question, enter a number 1 to 7 and find equivalent days in word. Based upon this question, you will we will understand what is the difference between if else and switch case. I will solve these questions both in if else and in switch and using switch case. So based on this example, based on this question, you will get the idea how switch case and how if else are different. Okay, I hope you are getting. Yes, sir. When we will solve this example, we will understand more about this. Programming is not just about theory, it is all about practical. So more and more questions we will solve, more and more understanding we will develop about the particular topic. Okay, so let us start without wasting our time. Enter a number 1 to 7 and find equivalent day in word using switch case. Okay, first we will write this program using if else. You know the if else. Okay, I hope you are aware, so you will help me with this program. What exactly I have to do? I have to read a number. Okay, user will enter either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or user can enter any of the numbers from 1 to 7 or any of the number, whatever he likes. Based upon the number, based upon that number, whatever the user have entered, I have to display the day of the week. Okay, for example, if I consider the starting day as Monday, so when the user will enter 1, then I have to display Monday. When the user will enter 2, then I have to display Tuesday. And accordingly, when the user will enter 7, then I have to display Sunday. Okay, suppose that if the user enters 8, 9, or any other number besides 1 to 7, in that case, I have to display a message that please, you have entered a wrong value or a wrong number. Okay, so that will be my else part. Fine. Okay, I hope the question is understood, right? Yes, sir. The question, I hope no. Yes. Okay, so first we will write this program based on if else, and then we will convert this program in switch case. So we will be able to understand the difference between the two programs. Fine. So let me start. I guess we are having that. I have installed that application, right? C++. So we will do the program in C++ application.
Okay, I will check for the icon. Ah, yes. Okay. So I hope you all remember the steps. First Yes, sir. step, Yes, sir. new. सर स्क्रीन पे सब पूरा नहीं दिख रहा है क्या हो गया? सर आप इसको छोटा स्मॉल सर करो आपने ना साइमल्टेनियसली और कुछ भी ऐप ओपन किया स्क्रीन पे, इसलिए हाँ पूरा पता स्क्रीन है, दिख नहीं मगर रहा। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या शेयर किया है, उतने पार्ट में ही कोड रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने सर चैट जब बॉक्स आप ओपन किसी करके रखा है फाइल ताकि को आप लोग सेव अगर कुछ करते लिखो हो, तो मुझे दिखाई दे। समझा? सर आप जब कोई फाइल को सेव करते हो तो सेव्ड फाइल को ओपन कैसे करते हो वो भी एक बार दिखा दो ना। फाइल ओपन, ठीक है, ये देखो ये सब मैंने प्रोग्राम्स किए थे ना, तो हम अपने पाथ में जाते हो, सी ड्राइव, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो C3, F5 जैसी फोल्डर है, star.cpp से तुम्हारे सारे फाइल दिख जाएंगे। तो तुम्हें जो भी फाइल ओपन करना है तुम ओपन करो, यहाँ पर ओपन पे क्लिक करो। सर फाइल मैनेजर से भी ओपन कर सकते हैं। क्या हो गया? फाइल मैनेजर से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फाइल मैनेजर से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, मतलब तुम ऐसा वो एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हो, फाइल एक्सप्लोरर से? हाँ सर। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मगर वो प्रोसेस सही नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली मेरे ख्याल से ओपन नहीं होगा, मैं श्योर नहीं। ठीक है, ओके सर। ओपन करो बेटर। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट आवर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेआउट, एज इंक्लूड iostream.h। आई होप आप लोगों को याद होगा। यस सर एज इंक्लूड conio.h। QNI ठीक है, then the next Yes, step sir. is void main, void main then opening braces, closing braces, then opening braces के साथ clear screen, CLR SCR, and closing Get braces के साथ get CH। okay, yes sir fine। So this is our basic layout. Now in this basic layout we will start with our code. Our code is to read 1 to 7 number। ये क्या हो रहा है? Read 1 to 7 number and display day of the week. 1 as Monday, ... 7 as Sunday। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो अब यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है, अब कुछ नहीं दिखाई देगा, अब अपना ही कोड है। अभी किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ बोलना होगा तो डायरेक्टली बोलना, ठीक है? चलो so how many variables I am supposed to create here in this program? 7 variables. Are you sure? Please think once again. Am I going to store all the days in a variable, or I am going to display the day based upon the value of a single variable? so value of a single variable Yes, based on the value of a single variable, I am going to display whether the day is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, so I have to create only a single variable, for example, D for day. Okay, then I will read the value. Cout, enter D, enter what I can print, enter the number between number for week week day. Okay, number for weekday.
bracket may I can specify it should be 1 to 7. Okay. Yes, sir. 1 to 7. Now it is upon the user whether he enters 1 to 7 or not. Okay, so we will take the possibility that user can enter besides 1 to 7 also. So I will read D. So this is our input part, variable declaration part. This is our input part, right? So we have completed with 2 parts. There are total 4 parts in any program. First part is declaration of variable. Second part is to read the variable. Third part is to apply the logic, and the fourth part is to display the output, right? Okay. So now we will start with the logic. Can anyone help me with the logic? What I have to check in this program? Your voice is breaking. Okay, Zenith has replied that I have to check whether the value of D. So if the value of D is exactly equals to 1, if this is true, then I have to display Then Monday. 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 Notice one thing, I haven't used the curly braces with if. Okay, I can Yes. skip the curly braces if there is only one line of statement. Okay, suppose that after if statement, after the if condition, there is only one line that I have to display based on this condition. Then we can skip the braces. We can skip these braces. Okay, this particular braces, we can skip it. Okay, if there is only one line, because braces are to create a block, and block is generally more than one line, not a single line is not called a block. Okay, are you getting the part? Yes, sir. Okay, so now else if we will repeat the process with D exactly equals to 2. 2. Okay, then we will display Cout. Tuesday. Cout what? Tuesday. Tuesday. Yes. Then we will repeat the process with else if LC. D is exactly equals to equals to 3 3. on Wednesday. Okay, then we Cout. will display Cout Wednesday. 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 Okay, then For else if if D D exactly equals to exactly equals to 4, Cout Cout Thursday. Thursday. Else if D is D exactly exactly equals equals to 5. to Cout Friday. Six Saturday. Saturday, 5th Sunday. Else Cout you have entered wrong weekday. Wrong number. Okay. So this is our complete program. I will repeat the program once again to all of you. Okay. पहले हमने क्या किया? The first thing that we did is we created a variable called D, which will store the number, okay, from 1 to 7 or any other number which the user is going to enter. Okay. So to store the number, we have used Cout and Cin. Over here, you can see these 2 lines. Cout, enter a number for weekday, and then Cin, with the help of Cin, we are storing the number which is entered by the user in this particular variable D. Okay. After that, with the help of if, else if, we are comparing the value of D. Okay. And we are checking whether D is 1, whether D is 2, whether D is 3, whether D is 4, 5,
6, 7 or any other number. Okay, and based upon our condition we are displaying the message. The day is Monday, the day is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. Okay, I hope you are getting the program. Anybody having any doubt so far? Okay, so I will continue. The next step is to save the program. Okay, so Sir, file, save. सर पहले कंपाइल करना है। नहीं, पहले सेव करने का हमेशा, क्योंकि अगर अच्छा। तुम्हारा कुछ एरर आया तो FYJC, ओके सर। inside the FYJC I will store if week. Okay, if week switch वाला प्रोग्राम करेंगे, switch week का, ठीक है। So this is our if week वाला program. So for compilation the shortcut is Alt F9. Alt F9. Okay, there is no error luckily. आप लोगों ने हेल्प की, थैंक यू वेरी मच। देन एग्जीक्यूशन के लिए, रन के लिए कंट्रोल ओके, तो देखो रन हो रहा है प्रोग्राम। ओके, यस सर। अब क्या पूछ रहा है वो, एंटर नंबर फॉर वीक डे। ओके, 1 to 7 हमने ब्रैकेट में मेंशन किया है। सपोज दैट इफ आई एम एंटरिंग 5 देन इट इज फ्राइडे। यस। Okay, now I will execute the program again and 8. I will enter 90, any number. ओहो। Okay, so it will give a message, you have entered wrong number. Yes. So else part is getting executed. So if Sir, I will enter sir. from 1 to 7, in that case I will get the day accordingly. Okay, and if I am entering any other number besides 1 to 7, then I will get a message which is written in else. पूछो, अभी क्या पूछना? सर पूछो। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे हम लोग ये करते, ऐसे कर सकते हैं 7 के बाद 8 डालेंगे तो मंडे आ जाए। अरे 8 डालेंगे, हाँ ये सर, फिर 9 डालेंगे ट्यूसडे, फिर 10, ऐसा। अच्छा समझा मैं, तुम ऐसा चाहते हो कि लूप में रहो, ठीक है, सीक्वेंस बना। तो 7 के बाद वापस से सीरीज 8 से कंटिन्यू होती जाए, 8, 9, 10, 11, हाँ 12, यस सर। 14। यस उसके सर। बाद फिर से सीरीज का कंटिन्यू होते जाए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यस 21। सर। यस सर। कर सकते हैं। चलो बताओ कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। बताओ किस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तरीका ये हो सकता है कि हमें यहाँ पर और यूज कर सकते हैं हम, और t exactly equals to 8। ओके, तो 1 और 8 दोनों के केस में एग्जीक्यूट होगा ये। कंपाइल करते, ओके, रन करते, हमने डाला 8 मंडे आ गया। यस सर। ठीक है, तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया। ओके सर ऐसा कुछ वैल्यू इसके लिए ड्रॉबैक क्या है? इसके लिए ड्रॉबैक ये है कि जैसे यहाँ पर अभी 8 किया तो मुझे और के साथ यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, यहाँ पर और ऐड करनी पड़ेगी। हाँ सर यहाँ वही पर बोला तो खाली था, बस मैं ये भी 14 तक कर लिमिटेड। पाऊंगा। हाँ 14 यस के बाद 15 के लिए मुझे फिर से और ऐड करना पड़ेगा, सर, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, बहुत तो काम ये बढ़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बताओ इजी सोल्यूशन क्या हो सकता है? एनीवन? वैसे हमारा ये पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट तो इतना ही है जितना अभी तक किया है हमने, मगर फिर भी आप लोग सोच रहे हो लॉजिकली तो सोचो, बताओ कैसे हो सकता है। हाँ बताओ क्या है तुम्हारे पास जैनित? सर मॉड्यूलस ऑपरेटर से कर सकते हैं। हाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैनित ने आंसर दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। जैनित तुमने एवरीवन के लिए दिया है कि खाली पर्सनली दिया है? एवरीवन में लिखा करो। हाँ एवरीवन ही दिया है, ठीक है। कोई नंबर 7 से बड़ा है उसको 7 से माइनस कर दो। समझा किसी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर नंबर 7 से बड़ा है तो उसको 7 से माइनस करो। मगर 1 to 7 में कैसे 7 से माइनस करेंगे जैनित? नहीं ये तो समझ गया कि 7 से बड़ा है तो, बड़ा नहीं है तो
अभी यहाँ पर देखो जेनिथ एक छोटा सा ड्रॉबैक हो रहा है। समझो अगर यूजर ने डाला 15 तो 15 माइनस 7 तो कुछ और होगा ना, 8 हो जाएगा। तो 8 के लिए मंडे कैसे आएगा वापस से? 15 के लिए फिर से मंडे आना चाहिए ना। सर जेनिथ ने जो बोला है उसमें खाली मल्टीपल्स ऑफ 7 ही वर्क करेगा। नहीं ऐसा नहीं है, जेनिथ ने जो बोला है उसमें वो 1 वापस से अपने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सोल्यूशन उसका पहुंच रहा है, ठीक है। 8 हो जाएगा, ठीक है। मगर 8 तो हमारे पास कंडीशन में नहीं है ना जेनिथ, हमारे पास कंडीशन में तो 1 2 3 4 ही है। किसी ने आइडिया दिया था मॉड्यूलस वाला, मनियार दिया ने। जो भी मॉड्यूलस नंबर वाले होगा से उसका अच्छा वर्क करेगा। मॉड्यूलस 7 कर देने का सर। हाँ, मॉड्यूलस 7 से अच्छा वर्क करेगा। सोचते हैं कैसे वर्क करेगा, ठीक है। देखो अगर हमने समझो डी की वैल्यू डाली है 1, हमें मंडे चाहिए। अगर मैं इसको 7 से मॉड्यूलस करता हूं, मान लो, ठीक है, 7 से मैंने मॉड्यूलस किया, 1 को अगर मैं 7 से मॉड्यूलस करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि क्वोशिएंट तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 ही मिलेगा अभी। मगर यहाँ पर दिक्कत यह है कि मॉड्यूलस तो मैंने कर दिया, मगर मुझे कंपेयर करने के लिए तो वैल्यू चाहिए ना कुछ। तो अब ये चीज इफ 1 में कर दो वर्क ना नहीं सर। करेगी, इफ में वर्क नहीं करेगी, इसको मुझे बाहर वर्क करना पड़ेगा, बाहर स्टोर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैंने सर इफ इफ में डी रखा, मॉड 7 इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ब्रैकेट में। हाँ ऐसे वर्क कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। डी मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 1, या फिर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं डी मॉड्यूलस 7, और वो हाँ वेरिएबल वो भी खाली कर पास कर सकते सकते हैं। हाँ तो चलो ट्राई करते हैं। वैसे ये तो वर्क करेगा ही, हम ये सब कुछ दूसरे में भी लिख देते हैं। मॉड्यूलस 7 ओके। चलो इसको करते हैं सेव, फाइल सेव, यस। अब करते हैं हम लोग कंपाइल, कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूट। अब हम डालते हैं वैल्यू 15। ओके, बेस्ड ऑन 15 वी शुड गेट मंडे, राइट? यस सर। है ना, तीसरी बार सीरीज कंटिन्यू होगी ना, मंडे मिल गया, ठीक है। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और हम कोई डे डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रैंडम नंबर 44। अब बताओ 44 से क्या मिलना चाहिए, कौन सा डे आना चाहिए? हमारे लॉजिक के हिसाब से कौन सा डे आना चाहिए, और वो डे आता है कि नहीं जरा देखते हैं। ट्यूसडे आना चाहिए सर। हाँ ट्यूसडे। ट्यूसडे आना चाहिए। हाँ बराबर, यस सर क्योंकि ट्यूसडे। रिमाइंडर 2 बचेगा ना, आ गया ट्यूसडे। अरे हाँ ट्यूसडे। सर 7 बराबर एंटर ना? करो 7। हाँ ठीक है, रिमाइंडर 7 नहीं बचेगा ना। हाँ सर 49 अगर डाला तो यू एंटर्ड रॉन्ग आ गया। 7 भी एंटर करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा सर। हाँ तो यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक हो रहा है अपना, यानी हम 6 तक सही जा रहे हैं शायद, सैटरडे तक, संडे नहीं आ रहा है इसके। हाँ सर। तो अगर मान लो ये एल्स में डाल दे हम लोग तो नहीं सर, वरना एक काम कर सकते हैं, एल्स इफ डी इज इक्वल टू 7 उसका मॉड ही नहीं लेते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर यहाँ डिवीजन। हाँ सर इसमें करेक्ट आएगा। L7 सही रहे। ये देखो देखो अभी रुको, 49 आया, हाँ ये सही है। हाँ ये 7 सर। आया, ठीक है। 14 आया, वरना सर वो 13 में देखो सैटरडे आया, हम उल्टा जाते हैं, ठीक है। हाँ 13 में सैटरडे, 12 में फ्राइडे,
11 में थर्सडे बराबर, 10 में वेडनेसडे, 9 में ट्यूसडे और 8 में मंडे और 7 में फिर से संडे। हो गया ना? सर बोलो। सर मुझे ये प्रोसेस समझाओ ना, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। अच्छा ओके, इसमें ये हो रहा है कि हमने है ना किसी का माइक ऑन है जरा? डी से डिवाइड कर रहे क्या इधर? नहीं, इसमें ना हम लूप चला रहे हैं इनडायरेक्टली। हम कैसा कर रहे हैं देखो, अगर तुम कैलेंडर पिक करते हो, तुम्हारे घर पे कैलेंडर है ना? ठीक हाँ है सर है ना। हाँ, तो कैलेंडर में देखो मंडे Yes, ट्यूसडे sir. वेडनेसडे जब खत्म हो जाता है सीरीज, समझो अगर 1 तारीख को मंडे था तो 8 तारीख को फिर से मंडे होता है ना? यस सर। हाँ सर। ये चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सर वो तो समझा सर, डी हाँ, मॉड्यूलस हाँ, इक्वल टू 1, फिर डी मॉड्यूलस ऑफ 7 इक्वल टू। अरे वो रिमाइंडर से पता चल रहा है कि कौन सा डे है। हमने ये मान के चला है कि 1 जो रहेगा ना, 1 नंबर यानी 1 तारीख, मान लो कि 1 तारीख तुम्हारा मंडे है, 7 तारीख तुम्हारा संडे है, तो 8 तारीख फिर से मंडे होगा ना? ठीक है, हाँ तो उसको कैच करने के लिए ये चीज है। जब हम लोग 8 डालेंगे 8 और उसको जब डिवाइड करेंगे 7 से और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे तो 1 मिलेगा ना? हाँ। तो 1 से पता चलेगा ना अच्छा मंडे है। ओके। हाँ और बरोबर। कैलेंडर पे भी मंडे ही रहेगा ना 8 तारीख को। यस सर। समझा? ठीक उसी तरह अगर हम लोग 17 तारीख लेंगे तो 17 तारीख को अगर तुम कैलेंडर में चेक करोगे, अगर 1 तारीख को मंडे है तो 17 तारीख को तुम्हारा क्या रहेगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे बराबर। तो क्या वेडनेसडे जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे उसको 17 को, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। वेडनेसडे मिल रहा है ना? यस सर। समझ रहे मिल हो? रहा है। हाँ, तो ये इस तरीके का फंडा वर्क कर रहा है। तो तुम्हारा एक मतलब मंथ का कैलेंडर क्रिएट हो रहा है, तुम ऐसा एज्यूम कर लो। समझ गए? तो इसमें ना सर तुम्हारा मैं एडिट वाला पार्ट कोई स्किप भी हो गया। फाइल को सेव करता हूँ ना सर, तो ओपन में वो दिखता ही नहीं है। सर मेरा भी सेव का ही प्रॉब्लम है। वो हाँ सर। ओपन में इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि ये ना ओपन जब तुम कर रहे हो ना, तब वहां पर गलती से देखो खाली सी या सी लिखा होगा। हाँ सर पहले मेरा भी ऐसे था, मैंने चेंज कर दिया था। उधर उधर पीपी ऐसा लिख दो तो आ हाँ जाए। यस सर। ठीक है, इनवैलिड आता था सर। हाँ समझ गए? सिंपल है। सर वैसे इसको हमने तो सेव काफी करके अच्छा प्रोग्राम बना दिया। ये हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी बहुत अच्छा आप लोगों ने सोचा। वेरी गुड। ऐसे मजा आता है प्रोग्रामिंग, थोड़ा यस। तुम्हारा इनपुट होना चाहिए तो सही लगता है। आई होप सब लोग भी कैचअप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा Yes. नहीं कि सब लोगों को बोरिंग जा रहा है। Yes, sir. ठीक है, ओके फाइन। तो ये भी मैं सेव करके रखता हूँ। अब ये सेम प्रोग्राम समझो मुझे स्विच केस से करना है। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न रहेगा, फाइल न्यू। अभी हम जो सिंपल वाला तरीका था वही वाला करेंगे। फिलहाल वो मॉड्यूलस वाला फंडा नहीं यूज करते। फिलहाल जो सिंपल वाला था ना कि 1 2 3 4 7 तक, वही वाला करते हैं और स्विच केस से करते हैं। ठीक है, हाँ सर, अभी ओपन हो गया। हाँ चलो। सो प्रोग्राम इज टू रीड नंबर 1 to 7 and display। क्या टाइप कर रहा हूँ and display weekday। okay, 1 for Monday, likewise 7 for Sunday। फिलहाल हम लोग 1 to 7 पर ही फोकस करते हैं इस प्रोग्राम में। बाकी कैसे लॉजिक लगाना है वो आप लोगों को तो आइडिया आ चुका है। अगर तुम्हें वो कंटिन्यूटी में चाहिए तो 8 9 10 वाला समझ गए, तो अभी उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे स्विच केस वाले में। अभी खाली बस 1 to 7 वाले पे ही फोकस करेंगे। ओके ठीक है। यस यस सर। ठीक है, तो बोलो कुछ। चलो, हैश इंक्लूड IOSM डॉट वो नहीं हो। जो माइक पे नहीं बोल रहा है वो भी घर में बोलो। जब जितना तुम ज्यादा बोलोगे उतना वो ये याद हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि माइक पे बोलो ही तो ही मुझे पता चलेगा तुम बोल रहे हो।
void main सेमीकोलन नहीं आएगा, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज, ओपनिंग के साथ क्लियर स्क्रीन और क्लोजिंग के साथ गेट स्विच। ओके फाइन। सो स्टार्टिंग का पार्ट सेम रहेगा, int d cout enter number for weekday bracket 1 to 7 सेमीकोलन सेड डी सेमीकोलन। अब लॉजिक चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओ, फिर आगे का पार्ट लिखते हैं, ठीक है, टेंशन मत, बहुत ही सिंपल सा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज स्विच केस। तो स्विच केस के लिए स्विच वर्ड है, जैसे इफ एल्स के लिए इफ वर्ड है, ओके, वैसे स्विच केस के लिए स्विच वर्ड है। स्विच और डी ये वेरिएबल ही हम पास कर देंगे, ठीक है। फिर हम ब्लॉक ओपन करेंगे और यहां पर हम केसेस बनाना चालू करेंगे। केस 1 कॉलन सी आउट मंडे सेमीकोलन, ओके। देन केस 2 सी आउट ट्यूसडे सेमीकोलन। Then case 3 see out Wednesday। ओके, समझ रहा है सबको? बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर कंडीशन चेक नहीं होता स्विच केस में, यहां पर हम वेरिएबल ही पास कर देते हैं। बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल डी द केस विल बी एग्जीक्यूटेड। यस सर। ओके, जैसे अगर डी का वैल्यू समझो 5 है तो केस नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा। ओके ओके, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। केस 4 बस खाली फॉर्मेट कैसे लिखा है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है, सिंटेक्स के ऊपर ध्यान दो। डी के अंदर हमने वेरिएबल पास किया, कोई कंडीशन पास नहीं किया। यहाँ पर केस वर्ड यूज किया है, केस वर्ड के साथ हमने नंबर स्पेसिफाई किया है और Direct नंबर के value। बाद हमने कॉलन डाला है। कॉलन के बाद हमने जो स्टेटमेंट इफ में लिखा था वो सेम है ना, यस उस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, केस 5 नोटिस करो सब कुछ स्मॉल लेटर्स में, स्विच केस ये जो वर्ड्स है कीवर्ड्स उसके ऊपर ध्यान दो, वो सब देखो स्मॉल लेटर्स में। ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा रख, तो चीजें समझ में आएगी। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खाली बस पैटर्न चेंज होता है प्रोग्राम में और कुछ चेंज नहीं होता। सिंटैक्स हमेशा सेम रहता है। सैटरडे, then case 7 संडे। अब जैसे इफ एल्स में तुम्हारे पास एल्स था, अगर यूजर ने 1 से 7 के अलावा कोई और नंबर डाला, सो टू हैंडल दैट केस वी हैड एल्स। तो स्विच केस में होता है डिफॉल्ट, जैसे इफ एल्स में एल्स होता है वैसे स्विच केस में डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ये अगर समझो यूजर ने डाला 8 तो 8 तो केस है ही नहीं, हमारे पास 1 to 7 ही केस है। यस सर। तो 8 तुम्हारा डिफॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है। रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग वीकडे नंबर, ठीक है। ओके फाइन। अभी ना आउटपुट के ऊपर ध्यान देना, कुछ चीज मैंने मिस की है यहाँ पर, वो रीजन की वजह से मिस किया है, सर ब्रेक वो हम समझेंगे, ठीक है, कि क्या मैंने मिस किया। ओके चलो, पहले जितना हमने किया उतना समझ लीजिए। स्टार्टिंग का पार्ट सेम है जहां पर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे सर हैं। केस में ब्रेक नहीं आएगा क्या? हाँ परफेक्ट, ब्रेक भी आएगा, वो मैंने इंटेंशनली मिस किया है। तुम्हें पता है ब्रेक के बारे में, बाकी लोगों को नहीं पता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता तो समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं पहले ऐसे नॉर्मल लिखा फिर ब्रेक समझा, सर ठीक है। और सपोज आप 5 एंटर करते तो केस 1 to 4 भी एग्जीक्यूट होता क्या? नहीं, ठीक। चलो। सो स्टार्टिंग पार्ट इज सेम इन डी, वेरिएबल क्रिएट किया हमने, देन विद द हेल्प ऑफ सी आउट एंड सी इन वी आर रीडिंग द वेरिएबल, ओके।
and after that we have started with switch. Inside the switch we have passed this variable D. Okay, and after that after that we are creating 7 cases for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The value of the case is numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we have created a default case for handling a case which is not from 1 to 7, any other case. And all this is enclosed inside the braces. Okay, opening and closing braces. Clear है? यहाँ तक किसी को कोई confusion है? हेलो, हाँ सर, नो कंफ्यूजन। ठीक है, चलो। अब next step is to save. So save the program. We will save the program in FIGC folder. This program is switch to SW and V. क्योंकि पूरा स्पेलिंग स्विच और SW नहीं आएगा, SC कर देता, स्विच केस, SCB. Okay. Okay. Now let us compile the program. There is no error. Now let us execute the program. Please see how the program is. हेलो सर आपका माइक Okay, so all of you please focus at the output. Okay, suppose that if I am entering 7, in that case I am getting 2 outputs. Sunday, at the same time I am getting wrong weekday number. Okay, I यस will execute the program again. If I am entering 1, then I am getting output Monday, सर Tuesday, मतलब वो केस के बाद का सारा नंबर आ जाए and every other outputs. Okay. यस सर Now, if I am entering, for example, 5, okay, then I am getting Friday, Saturday, Sunday, and wrong week, all the outputs. यस सर वो केस के बाद का सारा नंबर आ जाएगा Perfect. ठीक है, यानी समझो अगर मैंने डाला 4, तो 4 से लेकर के नीचे के सारे केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ एल्स में ऐसा नहीं होता है ना. इफ एल्स में तो कोई एक ही चीज एग्जीक्यूट होती है. तो उसको ज्वाइन करने के लिए, मतलब इसको ओवरकम करने के लिए जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं वो है ब्रेक. ठीक है, ये जो ब्रेक कीवर्ड है वो क्या करता है कि समझो अगर हमने डाला 1 और 1 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, सी आउट मंडे के बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्विच केस क्लोजिंग के पास चला जाएगा और बाकी सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ओके, मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जीक्यूट करके बताता हूं. जब मैंने इसको अभी एग्जीक्यूट करूंगा, मैंने ब्रेक ऐड कर दिया है. ठीक है, नाउ आई विल सेव दिस. ब्रेक मैंने कहां पे ऐड किया है, केस 1 में. आई विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. आई एम एंटरिंग 1. अब देखो खाली मंडे आया है ना. यस सर। मगर मैंने बाकी सारे केस में ब्रेक नहीं डाला है, राइट. तो अगर मैंने समझो डाला नंबर 2, तो उस केस में देखो सारे आउटपुट आ रहे हैं अभी भी, है ना. यस सर यस सर तो हमें ब्रेक हर केस में यूज करना है. तो ये चीज हमेशा याद रखो. इस स्विच केस में पहला होता है स्विच जिसमें तुम वेरिएबल पास करते हो. दूसरा पार्ट होता है केस जो तुम केसेस बनाते हो स्विच के लिए. ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है ब्रेक. ओके, सर इफ एल्स में सब एग्जीक्यूट होता है ना. क्या हो गया. इफ एल्स में सब एग्जीक्यूट होता है ना सर. यस, अभी डिफरेंस यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ना जैसे केस नंबर 5 या केस नंबर 2 या केस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी सारे केसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होते. तो इससे तुम्हारा जो कंपाइलेशन टाइम है ना वो सेव हो जाता है. वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी कोई बड़ा सा जब प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उस केस में फर्क पड़ता है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ब्रेक यूज करेंगे.
सर आपका माइक सर आपका माइक म्यूट सर है। आवाज नहीं आ रहा है सर माइक बंद है। सर माइक। हाँ माइक ऑफ था क्योंकि कॉल आ गया था मुझे, सॉरी। ओके, सो देखो, केस 1 मंडे टू ट्यूसडे ब्रेक, लाइकवाइज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबके लिए ब्रेक। क्या डिफॉल्ट के लिए ब्रेक की जरूरत है? नो नो सर नहीं, क्योंकि No, लास्ट sir. में एग्जीक्यूटर है ना, तो जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। पहले इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एग्जीक्यूट। अब हम डालेंगे समझो 6, तो हमें खाली सैटरडे आएगा। ओके, अब हम डालेंगे समझो 1 या 2, तो हमें खाली ट्यूसडे आएगा। समझ गए? अब इससे फायदा क्या हो रहा है? आउटपुट तो सेम जैसा दिख रहा है, जैसा इफ एल्स में दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर भी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जैसे केस नंबर 2 डाला तो डायरेक्टली इससे क्या होता है ना, डी के वैल्यू के हिसाब से वो केस पे डायरेक्टली जंप करता है। इफ एल्स में क्या होता है कि पहले चेक करेगा कि देखो यहाँ पर है ना हमारा प्रोग्राम, रुको हम बाजू बाजू में रखते हैं प्रोग्राम को, ये छोटा होता है क्या पता नहीं। एक काम करते हैं हम, वो वहां पर प्रोग्राम को दोनों बाजू बाजू में ओपन करते हैं। इसमें था सी में ना, सी C3 FYJC HCV और दूसरा प्रोग्राम कौन सा था हमारा? ये थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ, ये पार्ट नहीं चाहिए अपने को अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये निकाल देता हूँ अभी के लिए। ओके, अभी हम कंपेयर कर रहे हैं इफ एल्स और स्विच केस को, तो जैसा स्विच केस का प्रोग्राम है मैं वैसा लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना सबको? यस सर। बोलेंगे सर क्या करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों प्रोग्राम को हम कंपेयर करते हैं, राइट? सो आई विल ओपन दिस इन this is our if else वाला प्रोग्राम and this is our switch case वाला। ओके, अब दोनों को ऑब्जर्व करो। फाइन, इफ एल्स में क्या हो रहा है? इफ एल्स में जब वैल्यू ऑफ डी हम ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर सारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने लिखा इफ समझो वैल्यू ऑफ डी इज 4, ओके, उस केस में पहले वो डी को 1 से कंपेयर करेगा, फिर डी को 2 से कंपेयर करेगा, फिर डी को 3 से कंपेयर करेगा, फिर फाइनली डी को 4 से कंपेयर करेगा और तुम्हारा थर्सडे आउटपुट आएगा। बाकी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मगर एटलीस्ट यहां तक तुम्हारा कंपैरिजन होगा। ओके, स्विच केस में क्या होता है? स्विच केस में डायरेक्ट डी का वैल्यू डाला 4, तो डायरेक्टली वो केस नंबर 4 पे जंप करेगा, ब्रेक करेगा और बाहर निकल, ये केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फास्ट है थोड़ा। तो इससे थोड़ा तुम्हारा कंपाइलेशन फास्ट हो जाता है। समझ गए? दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर देखो इफ में तुम्हें सब कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि डी एक्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, डी एक्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली तुमने डी लिखा, तुमने केस लिखा, केस के बेसिस के ऊपर वो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो रहा है, तुम्हें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वो जंप कर रहा है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है? सिंटैक्स का। ठीक है,
सिंटैक्स में यहाँ पर स्विच यूज करते हैं, ब्रेसेस, फिर केस सारे ब्रेसेस के अंदर आता है, एंड में एक डिफॉल्ट होता है, केस के बाद कॉलन लिखना होता है। तो ये सिंटैक्स का डिफरेंस है। यहाँ पर तुम इफ, एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ ऐसा सिंटैक्स, ठीक है। जो यहाँ पर तुम्हारा एल्स है वो यहाँ पर तुम्हारा डिफॉल्ट है, बाकी जो तुमने इफ एल्सिफ, एल्सिफ लिखा है वो तुम्हारे सारे केस है। ओके, यस सर। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम अच्छे से एक बार वापस से दोनों को समझ लो, दोनों को देख लो, दोनों को एनालाइज कर लो, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। क्या हो गया सर हाँ, सर ये जो हम लोग लूप वाला केस देख रहे थे, लूप की तरह, लूप, हाँ लूप वाला केस देखो। तो हम लोग इफ और एल्स में कंडीशन लगा रहे थे ना, हाँ, तो स्विच में कैसा, स्विच में तो डायरेक्ट वैल्यू पे आता है। स्विच में तुम कंडीशन लगा सकते हो, जैसे इफ और एल्स में कंडीशन लगा रहे थे ना हम लोग, क्या कंडीशन लगा रहे थे, डी मॉडुलस 7 वाला कंडीशन लगा रहे थे ना। यस सर। तो अगर इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, समझो ई मान लो, हाँ सर। और यहाँ पर ई डाल दूं, अच्छा तो अभी हाँ, ठीक है ना? यस सर। समझे? हाँ सर, हाँ मतलब इसमें बाहर लिखना के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा, और डिफॉल्ट संडे को देना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर हमने एज संडे को दिया था ना, हाँ यस सर, यस सर। ऐसे सेम यहाँ पर डिफॉल्ट संडे को देना पड़ेगा, और ये डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा। ओके सर, ओके, समझ गए? यस सर। और किसी को कुछ डाउट, कोई सवाल, एनीवन, एनी क्वेश्चन? एक बार अच्छे से दोनों प्रोग्राम ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, सब लोग देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, पूछ लो। सर वो गेट ch का यूज क्या था, एक बार वापस से बोल दोगे? क्या हो गया? गेट ch का यूज क्या था, एक बार वापस से बोल दोगे? वो आउटपुट स्क्रीन को फ्रीज करने में हेल्प करता है। जब हम अच्छा। लोग वैल्यू डालते हैं ना, एंटर नंबर फॉर वीक डे, तो वैल्यू डालने के बाद आउटपुट आना चाहिए ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यस सर। तो आउटपुट तुम्हारा फ्रीज हो जाए, उसके लिए गेट ch हेल्प करता है। अच्छा। अगर तुम गेट ch नहीं डालोगे तो इनपुट के बाद डायरेक्टली वो कोड पे चला जाएगा, आउटपुट स्क्रीन फ्रीज नहीं होगी। ओके सर। ओके, तो आउटपुट स्क्रीन को फ्रीज करने में हेल्प करता है। तो जब तक हम कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं डालते, इसीलिए जब हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो वो वापस से कोड वाले स्क्रीन पे आ जाता है, बिकॉज गेट ch का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। तो आउटपुट दिखाने के बाद वो है ना कैरेक्टर के लिए वेट कर रहा है। ओके, जब हम लोग कोई भी कैरेक्टर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है स्क्रीन को, और हमारे कोड वाले स्क्रीन पे लेके जाता है। समझ गए? आप लोगों के पेरेंट्स ने ले लिया वैक्सीन? अभी कहाँ? का सर? 45 यस प्लस वाले मेरे को मान यस सर। ले लो, ले लो, स्किप, इग्नोर मत करो। नहीं ने लिया सर। हाँ, क्या बोल रहा है आपने लिया? मैं क्यों लेगा भाई, अभी 45 का दिखता है क्या? कैमरा चालू करो देख क्या? देख लो सर, देख सर लो। चालू करो, चालू करो। सर आपकी पहचान दूर तक होगी ना। मैं 45 का लग रहा है? हाँ? सर अभी तो आपको जवान क्या है, होना अभी तो जवान। सच में, मतलब बेइज्जती कर देता तुम। सर तो हम लोग के जैसे दिख रहे हो सर आप। सर कौन सा स्टैंडर्ड में? इस बार हेयरस्टाइल भी वैसी रखी है चश्मा इसमें लगा है ना? बस उसी की कमी है, बाकी सब तो परफेक्ट ही है। सर 45 के नहीं है तो भी ले सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक प्रोसेस से जा रहा है ना कि
एज वाइज जा रहा है ताकि हाँ सर। तीन टाइम से मिले। जबरदस्ती जाके लोगे तो पता नहीं तुमको वैक्सीन ही देने की कुछ और दे रहे हैं, क्या पता। बरोबर सर, बरोबर। इसीलिए जैसा जैसा गवर्नमेंट बोल रहा है वैसा फॉलो करो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, सबका नंबर आएगा, टेंशन मत, ठीक है। यस सर, यस। सर हम प्रमोट होंगे क्या 12th में? अरे यार फिर वही सर। छोटी छोटी बातें क्या लेके बैठ रहे हो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। सर तो न्यूज आई थी कि होंगे। प्रमोट होना है तो हो ही जाएंगे यार, उसमें क्या है। एग्जाम भी तुम्हारा कैसे ले रहे हैं हम लोग, देखो। हाँ वही तो यस सर। सर। वो इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं तुमको, थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करो। हाँ सर, सही। यस सर। सर एग्जाम कब होगा? ये अगर होगा तो इस मंथ के एंड में होगा। सर हम लोग को कॉलेज देखने सर मिलेगा? फाइनल होगा कि मतलब कैसा? कॉलेज देखने का एक एक दिन है ना, हम लोग वो वीडियो लॉग करेंगे, ठीक है। यस सर, यस। ब्लॉग बनाते हैं सर। तो पूरा कॉलेज जब ऐसा ओपन रहेगा ना, अभी तो सेकंड और थर्ड फ्लोर ऑफ रहता है, तो पूरा कॉलेज जब ओपन रहेगा ना तो पूरा कॉलेज का टूर करेंगे बस। सर। हाँ सर। सर तो जो ये एग्जाम होगा वो फाइनल होगा कि इसके बाद सेमेस्टर 2 भी? तो फाइनल ही होगा यार, अभी कितना एग्जाम मिलेगा, ठीक है। वही सर, वही। हाँ, ये फाइनल ही है, अभी कुछ और नहीं। सर 12th कैसा होगा हम लोग? जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। मतलब सर ऑफलाइन है ऑनलाइन? ऑनलाइन ही चलेगा, इसीलिए बुक लेके पढ़ना चालू कर दो। क्या बोल रहे हो सर? सर ऑनलाइन में पढ़ने का मन नहीं कर। सर कंप्यूटर साइंस का बुक लेना है क्या? कंप्यूटर साइंस की बुक की जरूरत नहीं है, लेक्चर बैठो इनफ। ओके सर। नहीं तो वो कुछ आपने एक बार ग्रुप में फोटो डाला था ना। कौन, क्या फोटो डाला था? नहीं, CS2 का था वो, सर बोले थे HTML का। ओके चलो आगे बढ़े। सब लोग ने देख लिया स्विच केस इफ एल्स, इजी है। यस ठीक है, अभी सेकंड और आगे भी पढ़ा रहे हो? क्या हो गया, ये सेकंड प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं ना। एंटर ऑपरेटर एंड कैलकुलेट ऑपरेशन बेस्ड ऑन दैट। हमने ये इफ एल्स में किया है ना, हाँ सर। है ना। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो अब इसको स्विच केस में करते हैं सेम प्रोग्राम को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले ओपन करता हूँ कि मेरा इफ एल्स वाला प्रोग्राम है कि नहीं। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज दिस आल्सो। कौन सा था वो, एवरेज। सर तो जो भी केस हम लोग को बना के लिखना रहेगा वो अलग बना के लिखना रहेगा स्विच में ना। हाँ, इसमें दिख नहीं रहा है, चलो हम दोनों प्रोग्राम फटाफट कर देते हैं, ठीक है। हमें वो अरिथमेटिक वाला प्रोग्राम करना है। वी हैव टू रीड एन ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस एंड बेस्ड अपॉन द ऑपरेटर वी आर सपोज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ओके, सो आई होप प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। रीड ऑपरेटर, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। वी हैव टू रीड दिस ऑपरेटर and perform operation based on operator. Okay, तो समझो अगर यूजर ने डाला एडिशन, so we are supposed to do the addition. यूजर ने डाला मल्टीप्लिकेशन, we are supposed to do the multiplication. So we will write this program both if else and switch case. So void hash include outstream.h, hash include conjure.h, then void main, then braces open and braces close. Opening braces के साथ clear screen और closing braces के साथ get switch. Okay. Then we will now we are supposed to read the character. Okay. So to store the character, which type of variable we are supposed to create? किसी को याद है? अभी देखो यहाँ पर हमें क्या रीड करना है, हमें यहाँ पर स्टोर करना है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, यस, वेरी गुड। सपोज टू क्रिएट कैर टाइप ऑफ वेरिएबल, जिसको कुछ कुछ चार भी प्रोनाउंस करते हैं, इट्स ओके, यस सर, फर्क नहीं पड़ता।
So स्पेलिंग सही रहनी चाहिए। हाँ, you can call it char, you can call it care, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, कोई इशू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरे 4 क्यों यूज होता क्या हो गया? सर पूछ रहा है 4 क्यों यूज होता है? क्योंकि हमें क्या स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो कोई नंबर नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है, वो क्या है, सिंबल्स है, राइट? सिंबल्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। यस सर। को स्टोर करने के लिए तुम्हें कैर वेरिएबल यूज करना पड़ता है या चार वेरिएबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो कैरेक्टर जो डेटा टाइप है ना, ये जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर, नंबर यानी ऐसे सिंबल्स वगैरह स्टोर करने में हेल्प करता है, ओके। साथ में कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो तुम, मगर स्पेशली अगर तुम्हें सिंबल स्टोर करना है तो तुम्हें कैरेक्टर कैर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। साथ में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने का है तो हम लोग दो नंबर भी रीड करेंगे, ए बी, ठीक है, और ऑपरेशन को स्टोर करने के लिए सी। समझा? यस सर। ठीक है, अब हम क्या रीड करेंगे? वी विल रीड एंटर द ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सीन सी एच। तुम सी एच दे दो या ऑपरेटर है ना तो ओ दे देता, ओ ज्यादा अच्छा है। मगर ओ में ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तुमको लगता है जीरो है, इसीलिए सी एच ही थी, ठीक है। तो सी एच में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टोर कर रहे हैं, साथ में हम दो नंबर भी रीड कर लेते हैं, एंटर टू नंबर्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। सर आप ओके, सीन ए, सीन बी, ARITHMATIC, एस नहीं आएगा, ठीक है। इतना पार्ट समझा? यहाँ पर हमने कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया CH, फिर हमने इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया ABC। CH will store the arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, any one of the operator जो भी user enter करेगा। And in AB we are going to store the two numbers, and based upon the two numbers for we are going to perform the arithmetic operation, and the result will be stored in C। अगर तुम्हें C में स्टोर नहीं करना है तो तुम डायरेक्टली भी डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर सी की जरूरत नहीं लग रही तुम्हें, तुम निकाल सकते हो उसको, ताकि डायरेक्टली तुम ऑपरेशन ही डिस्प्ले करो, तो सी को निकाल देते हैं, नहीं जरूरत नहीं लगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्लस। यहाँ पे नोटिस करो हमने प्लस कैसे लिखा है, ठीक है, सिंगल कोट्स में कोट्स में प्लस लिखा है, क्योंकि डायरेक्टली अगर प्लस लिखोगे तो ऑपरेटर हो जाएगा, ओके। तो जब हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल को कंपेयर करते हैं कैरेक्टर के साथ, तब उस केस में सिंगल कोट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर भी सिंगल स्टेटमेंट ही रहेगा, डबल स्टेटमेंट है नहीं, तो हमें ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, ओके। सी आउट एडिशन इज सी आउट, ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर a प्लस बी, ओके। तो डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। समझ रहा है? समझ रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है? समझ रहे सर। समझ रहे सर। It exactly equals to सिंगल माइनस, कोट माइनस। ठीक है। सेम प्रोसेस वर्क करेगा, सी आउट सब्ट्रैक्शन इज, ये हमारा हुआ था मगर फिर भी एक रिवीजन टाइप है, a माइनस बी, else if CH equals to multiplication, मल्टीप्लिकेशन पैरेंथेसिस में A into B, CH exactly equals to division, quotient is
डिवीजन में क्वेश्चन मिलता है ना, यस है ना? यस सर। इसलिए क्वेश्चन टीएस लिखना ठीक रहेगा, a divided by b. Then finally else if CH डबल to modulus. मॉड्यूलस मॉडुलस में क्या मिलता है? रिमाइंडर रिमाइंडर इज a modulus b. Then finally else. else में क्या लिखेंगे? See out. नॉट कैरेक्टर Wrong operator. कैरेक्टर नहीं, ऑपरेटर से डील कर रहे हैं। Wrong operator. ओके, यस सर। एक बार फिर से प्रोग्राम को गो थ्रू करते हैं फ्रॉम लाइन नंबर 1। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले वेरिएबल क्रिएट किया, कैर ch. Okay, then we have created two integer variables a and b. Then we are storing arithmetic operator in ch, and we are storing two numbers in a and b. Okay, after that we are comparing the ch with each arithmetic operators. First we are comparing with addition, then we are comparing with subtraction, likewise multiplication, likewise division, and finally modulus. And based upon the comparison we are performing the operation. If the operator is addition, if the character value is addition, then we are performing addition. Likewise, we are performing subtraction, then multiplication, then we are finding the quotient, then we are finding the remainder. And if the operator is not an arithmetic operator, then finally in else we are displaying wrong operator. Simple? Understood? पूरा हाथ में से एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या हो गया? घर वालों से बात कर रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है। FYJC, this is our if operator, if OP. ठीक है, चलो compile, there is no error. Execute. We are entering the operator as addition. We are entering the number as 5 and 7. किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो। ठीक है, 5 and 6 and 7 एडिशन इज 13। आ गया? यस सर। ठीक है, सिंपल है। एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैंने डाला मॉडुलस, नंबर डाला 7 and 5, सो मॉडुलस रिमाइंडर, आई विल गेट द रिमाइंडर इज 2। ओके, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 5 2, ठीक है, बराबर ना? एक बार एल्स वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। समझो हमने डाला एंड, ठीक है, तो एंटर टू नंबर्स तो पूछ रहा है, मगर कुछ रॉन्ग ऑपरेटर आउटपुट आएगा। सर ऐसा कर सकते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डाल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग ने एंड्स डाला तो डायरेक्ट आ जाए वैल्यू रॉन्ग ऑपरेटर। हाँ, आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? तुम्हें जो एंटर टू नंबर है ना, हाँ ये तुम्हें सर। इफ एल्स में लिखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सब में एक एक बार? ओके, सब में रीड करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ सर, ज्यादा हो तो हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ यस सर। तो ये ठीक है, चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हाँ सर, ये हम लोग एरर्स को कैसे रीड करते हैं? क्योंकि सर आपका जब ये हो जाता है ना, तो मैं बाद में अपने से कोड लिखता हूँ ना, तो सर उसमें एरर आता है, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है कौन सा एरर कहाँ पे आया है। ठीक है, कौन से टाइप का एरर आता है, कुछ रीड करके बताओगे? कुछ याद है सर? जैसे कि सर एक सिंगल कॉट कॉमा का एरर आता है कोई, तो ठीक है, उस चलो पे मैं कुछ कॉमन एरर्स है मैं बता दूं। हाँ सर। पहला एक कॉमन मिस्टेक होता है कि हमें ना स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आयो स्ट्रीम और कॉन्यू में। समझो मैंने ऐसा स्पेलिंग लिख दिया गलती से, ठीक है, आयो स्ट्रीम का या कॉन्यू का हमने स्पेलिंग ऐसा लिख दिया, तो उस केस में मिस्टेक होता है। ठीक है, सो जैसे अभी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फिर मैं कंपाइल करूंगा तो देखो 6 एरर आ गया। ठीक है, हाँ सर। अब देखो अनएबल टू ओपन द फाइल, एरर रीड करो, तुमको है ना आउटपुट समझ में आएगा, सॉल्यूशन समझ में आएगा। सर एरर वार्निंग का एरर आता है, वार्निंग का।
वार्निंग को इग्नोर करो, वार्निंग का ज्यादा एरर रहता है सर। वार्निंग को इग्नोर करो, वार्निंग फर्क नहीं पड़ता वैसे, वार्निंग मेरे को तो नहीं है डायरेक्ट। जैसे देखो यहाँ पर कैसा लिखा है, अनेबल टू ओपन फाइल स्ट्रीम आई स्ट्रीम करके कोई है ही नहीं, तो ओपन नहीं कर पा रहा है वो, तो मैंने इसको आईओ कर दिया, मेरे को समझ गया कि मिस्टेक है यहाँ पर, कौन आईओ कर दिया। दूसरा मिस्टेक होता है हम अननेसेसरी सेमीकोलन दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखो सेमीकोलन दे दिया वर्ड मेन के बाद, यस जो सर। अलाउड नहीं है, तो मेरे को देखो एरर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्ट, यानी टर्मिनेशन कैसे होता है, सेमीकोलन से होता है। ठीक है, हाँ सर। तो टर्मिनेशन हमने इनकरेक्टली किया है, इसका मतलब हमने सेमीकोलन गलत जगह डाला। मीनिंग समझ रहे हो? ओके ओके सर। ओके, और कहने का मीनिंग क्या है वो समझो, तो तुमको चीजें समझ में आएगी। अगर डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली बोला है, इसका मतलब सेमीकोलन गलत जगह ऐड किया है, सिंपल। तो ये देखो, ये वाले लाइन में तो सेमीकोलन नहीं है, तो कॉमन सेंस है, ऊपर वाले लाइन में सेमीकोलन है, निकाल दो। ओके ठीक है, सर। ऐसा। अभी समझो एक मिस्टेक यहाँ पर होता है कि जैसे जैसे हमने वहां पर मिस्टेक किया, स्पेलिंग मिस्टेक का कॉमन एरर बहुत होता है। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे सेमीकोलन जरूरत था मगर मैंने सेमीकोलन डाला ही नहीं, वो भी एक मिस्टेक होता है। तो एग्जीक्यूट करेंगे, जो एरर आ गया, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, खुद ही बता रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग है, सेमीकोलन नहीं डाला है, मगर देखो कहां पर बता रहा है वो। ठीक है, वो हाँ बता सर। रहा है कैर सीएच वाले लाइन में, वहां पर तो हाँ डाला सर। है, तुमको लगेगा हमने तो डाला हाँ है वही वही सर। सेमीकोलन। ठीक है, मगर समझे, कहने का मतलब ये होता है। सर को सुनना ही नहीं दिया। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट मिसिंग का जो एरर आ रहा है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैर सीएच वाले लाइन, मगर कैर सर फिर से नहीं आया। सर माइक म्यूट हो गए। आपका आवाज बीच में क्या, म्यूट मुझे होता कॉल आ रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, कैर सीएच, मैं फिर से इसको एरर लेकर आता हूँ। देखो, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन का एरर कहां पर दे रहा है, कैर सीएच वाले लाइन में, जहां पर सेमीकोलन है। ठीक है, हाँ तो सर। तुमको लगेगा कि सेमीकोलन तो है, तो एरर क्यों आ रहा है, एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुमने ऊपर कहीं पर सेमीकोलन मिस किया है। अच्छा ओके। तो देखो यहाँ पर हमने ऊपर मिस किया सेमीकोलन, यहाँ पर, जिसकी वजह से नीचे एरर आ रहा था। समझ गए? हाँ यस सर। ऐसा सिली मिस्टेक होता है सर वही जो नीचे वाला सर, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। हाँ, वो अभी और जैसे देखो एक मिस्टेक ये भी होता है कि तुम है ना डबल डालना भूल जाते हो सी आउट के बाद। हाँ ठीक है, ओके। सिंगल डाल देते हो गलती से, तो कुछ ऐसा एरर आता है। अभी पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। ठीक है, एरर तो नहीं आया मगर कुछ अजीब सा हो गया। सीन के बाद अगर तुमने सिंगल डाल दिया, ठीक है, तो देखो कुछ एरर आया। देखो 2 वार्निंग भी आया। अब देखते हैं हाँ वार्निंग सर। वार्निंग क्या बोल रहा है, कोड हैज नो इफेक्ट, है ना? क्या बोल रहा है हाँ वार्निंग, कोड हैज नो कोड इज इफेक्ट। नो क्यों? सर। क्योंकि ऑपरेटर गलत यूज किया है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसका, मतलब अननेसेसरी कोड हो गया, ये किसी काम का नहीं ऐसा। तो ऑपरेटर सही ऐड करो। ओके ओके, समझो यहाँ पर सही ऐड कर दिया, फिर से एग्जीक्यूट किया, फिर से एक वार्निंग आ रहा है कि क्या वार्निंग दे रहा है, अभी एरर दे रहा है, एरर और वार्निंग दोनों दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट कैर टू वॉइड। अभी ये तो कुछ अजीब सा ही बोल रहा है, तो कॉमन सेंस यूज करने का कि किस लाइन में एरर है, किस लाइन में एरर है, सीन वाले लाइन में एरर है। ओके, तो सीन का सिंटेक्स क्या होता है, सीन का सिंटेक्स क्या होता है, सीन और साथ में हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर में 2 ग्रेटर देन होता है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर सिंगल यूज किया हमने, तो कैसे होगा? तो इसीलिए कभी कभी जरूरी नहीं कि तुम एरर रीड करके तुमको पता चलेगा कि मिस्टेक क्या है। अच्छा, मतलब कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करने का, सिंटेक्स को याद रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने डबल डाल ओके दिया तो सर हमारा ओके। ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स में तो डबल ही चाहिए ना, हाँ यस सर। बराबर ना? ऐसे तो सिंपल सी मिस्टेक होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिस्टेक नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर समझो कंपैरिजन करते वक्त हमें सिंगल कोट्स डालना भूल जाते हैं। ओके, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, तो उस केस में भी तुम्हें कुछ एरर आता। देखो 3 एरर आ गए। क्या बोल रहा हाँ है? सर। ठीक है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स, वो बता रहा है ना कि तुम्हारा सिंटेक्स एक्सप्रेशन गलत है। ठीक है, ओके ऐसा। तो यहाँ पर अभी सही कर दो उसको, ऐसा। ठीक है, कुछ चीजें समझ में यस आती सर। है रीड करने के बाद, कुछ चीजें कॉमन सेंस यूज करनी है, ओके सिंटेक्स हमेशा याद रखने का बस। सर। यस सर। चलो
तो हमने कुछ एरर का भी डिस्कशन कर लिया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। अब ये सेम प्रोग्राम फटाफट हम लोग एलसीफ से भी कर देते। ओके मैं काम करता हूँ, पूरा ना टाइप करना पड़े, इसीलिए उस फोल्डर में जाकर के पहले इसको सेव कर देता हूँ। क्लोज, इसको भी क्लोज। हम लोग फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर अभी क्या है ना, इफ ओपी, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, स्विच केस होती। ओके अब इसमें थोड़ा सा फटाफट चेंजेस कर दें। चलो कोड C++ में चेंज करते हैं। एक एक करके क्या बन रहा है। ओके अब फाइल ओपन, कौन सा ओपन करने का अपने को? अच्छा ऐसे इसको बंद करना पड़ेगा। फिर से स्टार्ट करेंगे तो दिखाई देगा। दिख रहा है? यस सर, SEO। है ना, पहले नहीं हो रहा था ना, पहले नहीं दिख रहा था। हाँ आप फटाफट इसमें चेंजेस करते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट सेम रहेगा, चेंजेस कहाँ पर होगा? यहाँ पर सेंटर वाले पार्ट। ओके तो स्मार्टली चेंज करते हैं। इफ नहीं आएगा, स्विच आएगा। ठीक है, स्विच के अंदर डायरेक्टली CS जाएगा, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग नीचे ले लेते हैं। ओके समझ रहे हैं? ओके और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? केस। ब्रेसेस ओपन करना भूल गए, ब्रेसेस ओपन कर दिया, क्लोज कर देंगे बाद में, पहले सब लिख लेते हैं। केस के साथ हम लोग कुछ यूज नहीं करते, खाली केस डायरेक्टली लिखेंगे और कॉलन यूज करेंगे। और ये हमारा पहला केस हो गया रेडी। ओके डायरेक्ट। समझा? यस है ना? सर। और क्या यूज करना पड़ेगा साथ में? ब्रेक। ओके तो पहला हो गया। अब सेम पैटर्न हम लोग बाकी में भी यूज करना चालू कर देंगे फटाफट। केस माइनस कॉलन, ये डिलीट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ब्रेक। देखा हम इफ एल्स वाले प्रोग्राम को कितना इजीली स्विच केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। है ना? इफ एल्स खाली निकाल दो, ये सब निकाल दो, खाली बस केस लिखो। ठीक है, केस लिखने के बाद यहाँ पर कॉलन लिखो, कॉलन लिखने के बाद बाकी का पार्ट निकाल दो और यहाँ पर ब्रेक डाल दो। सिंपल। सिंटैक्स खाली पता होना चाहिए, तुम कोई भी प्रोग्राम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजी। खाली बेसिक हमेशा याद रखो, तुम्हारा 2 साल में तुम यही फोकस करोगे। ठीक है, मेन टारगेट 2 साल में तुम्हारा यही है कि तुम्हें सिंटैक्स समझना, पैटर्न समझना। वो समझ में आ गया ना, तुम्हें कोई भी प्रोग्राम इजीली कर सकते। बाकी प्रोग्रामिंग पढ़ने का कोई और तरीका नहीं होता, यही तरीका होता है। And finally this else will become क्या? Default, yes, perfect. डिफॉल्ट में आ गया, इसमें ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर हमारा ये ब्लॉक, समझ गए? यस सर। कितनी अच्छे से कन्वर्ट हो गया सर। ये थोड़ा देखने में भी अच्छा, क्या हो गया? सर अच्छा भी लग रहा है देखने। हाँ, प्रोग्राम तुम कैसे लिखते हो, रीडेबल है कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर रहता है। अभी देखो बहुत सारा लोग कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली ऐसा लिखना चालू कर देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सब कुछ लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो उससे रीडेबिलिटी नहीं आती, इसमें थोड़ा रीडेबिलिटी आती है। मेरा प्रोग्राम लिखने का तरीका ऐसा रहता है। ठीक है, ऑनलाइन भी तुम देखोगे तो इसी टाइप का प्रोग्राम हमेशा थोड़ा सा इंटेंट करके हमेशा, तो समझ में आता है कि कौन सा पार्ट किधर है। यस ओके तुम नोटिस करो यहाँ पर केस में ब्रेसेस नहीं होता, केस में देखो मल्टीपल लाइन भी होता है ना, तो भी ब्रेसेस नहीं होता। ओके यस सर। फाइल सेव एज नहीं करना है, फाइल सेव। ओके अब हम करेंगे कंपाइल, न्यू एरर, वी विल एग्जीक्यूट, इट इज गोइंग टू वर्क। समझो मैंने डाला मल्टीप्लिकेशन, नंबर डाला 5 and 6, मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग,
एक ही केस एग्जीक्यूट हुआ है ना, दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, हाँ यस सर। क्योंकि हमने ब्रेक यूज किया तो खाली मल्टीप्लिकेशन पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, डिवीजन मॉड्यूलस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा सर, हाँ सर अगर ये ब्रेक हटा देंगे तो सबका दोनों का वैल्यू सब में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के नीचे वाले सबका वैल्यू आएगा। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब आएगा और अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन के बाद मतलब ब्रेक सब हटा करने दिया। के बाद आंसर आएगा ना, जो फाइनल आंसर है। नहीं, सब आ जाएगा एक 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 एक। अभी देखो ना वही मैंने बोल रहा ब्रेक हूँ हटा दिया तीनों में से, ठीक है। ओके, हाँ सर हाँ। एग्जीक्यूट किया मैंने डाला मल्टीप्लिकेशन, नंबर डाला 5 and 6। अब देखो तीनों आ रहा है। अच्छा ओके, साथ में मल्टीप्लिकेशन आ इज रहा है। 30, कोशेंट इज 0, रिमाइंडर इज 5 एंड रॉन्ग ऑपरेटर। ओके सर ओके। समझ गए? हाँ यस सर। अभी मुझे चाहिए तो मैं ऐड कर दूँ। अंडू किससे करते हैं? अच्छा अंडू हो ही नहीं रहा है ऐसे। ऑल्ट ब्लैंक वर्क नहीं कर रहा। हाँ कर रहा, ठीक है। यस Done? सर। समझे? तो हमारा Yes. दो प्रोग्राम हो गया। Yes, ये मैं sir. ये डाल दूंगा। किसी को कुछ डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो पूछ। तो हमारा ये हो गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिपीटेशन से शुरू करेंगे। यस सर। ओके, फॉर व्हाइल डू व्हाइल ये सब। और आप लोगों का असाइनमेंट ये रहेगा कि जितना एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में हमारा प्रोग्राम हुआ है इफ एल्स रिलेटेड, ये सारे प्रोग्राम तुमको करने हैं कन्वर्ट। वैसे हमने किया है शायद ये सब। हाँ सर। सर आप ये सब यूट्यूब पे डालोगे? कौन सा पेपर? हाँ सर पेपर नहीं सर, यूट्यूब पे वीडियो डालोगे? हाँ डाल दो, ठीक है। यस सर तो यस सर। बंद करें, कुछ जानना है, कुछ पूछना है कि पैक करें? Pack कर करो। सर आप दे। बाय सर टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर का लिंक किधर है? वो डाला था मैंने ग्रुप में, देखो मिल जाएगा। टेलीग्राम पे डाला था। सर वीडियो आज आ जाएगा ना? हाँ आ जाए। ओके सर, बाय सर। चलो बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय थैंक यू सर। बाय, थैंक यू।